and you have heard her before. I think all of you have in the recent webinar we had. And also she was one of the persons who had delivered the lecture in our web lecture series. So again, ma'am is here with us to tell us about research methodology in social sciences. So we should begin without wasting time. This time it is, the topic is new. You want me to speak in Hindi or you want me to speak in English? Or maybe combine? Combine, okay. So the topic is research and methodology, right? You see, we talk a lot about authentic research, proper research, knowledge of methodology, and so on and so forth. But after teaching in the university for 40 years, I've realized that research is basically done in order to get promotion. Earlier, this was not so. Promotion was a different thing and research was a different thing. But of course, most of the students who passed out would eventually finish and complete their research work. Now, the moment you tag the two together, that is, you tag employment with research, then what happens is you get employment, but your research standards goes low. And this is what has been happening in the universities of, at least I can say, of Bihar. And if not of all the universities in Bihar, I can surely talk about Patna University, where I've been teaching for so long. Progressively, there has been a decline. And it's almost become, I think all of you know, it's almost become a business, and a very profitable business for those who are enabling their students कि वो रिसर्च कर लें. इसलिए तरह तरह की दुकानें खुल गए हैं. ऊपर का जो कवर्स है उसको चेंज कर दिया जाता है, अंदर में कुछ कुछ चेंजेस हो जाते हैं और फिर रिसर्च कंप्लीट हो जाता है और कमीशन में इंटरव्यू देने वो चले जाते हैं. But then in the long run, I think it does not pay really. Ultimately, research जो होगा वो थोड़ा seriously करना पड़ता है. You see, there are two words. Research को अगर bifurcate कीजिए तो दो शब्द हैं. एक है re and the other is search. You can take both together. दोनों को आप साथ ले सकते हो या दोनों को अलग भी कर सकते हो. जैसे search in itself, और जब हम एक prefix add करेंगे उसमें re, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसी search को एक बार फिर से देखने का प्रयास कर रहे हैं. Correct? And then when you combine both, research, then it becomes a verb. You're acting, you're doing something, you're researching. Now this word research, therefore, has a very, very important meaning. And social sciences में जितने topics हैं, सबके अपने अपने methodology हैं, सबका अपना ethics भी है उसमें, how to morally conduct a research. But at the same time, सब में एक सामंजस्य भी, कि कुछ codes of conduct ऐसे हैं जो कि हर एक research में हम follow करते हैं.
जैसे मान लीजिए एक रिसर्च हो सकता है कि एक होगा आपका अप्लाइड रिसर्च और एक होगा आपका प्योर रिसर्च. मान लीजिए हम, इफ आई एम डूइंग अ रिसर्च इन ऑन कल्हन, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं आप जानते हैं कल्हन के बारे में, तो कल्हन पर हम राजतरंगिणी पर रिसर्च कर रहे हैं, हम प्योर रिसर्च कर रहे हैं. हम दोनों तरह से उस किताब को देखेंगे. हरमेन्यूटिक्स आते हैं, उस शब्द के अर्थ बाद में हम बताते हैं, और ह्यूरिस्टिक, दो शब्द है, हरमेन्यूटिक्स एंड ह्यूरिस्टिक. अब उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम करते हैं कि पहले हम किताब को स्टडी करते हैं. ये राजतरंगिणी कल्हन का लिखा गया था 11वीं-12वीं शताब्दी में. राजतरंगिणी किताब लिखने के पीछे राइटर की क्या मंशा थी, हर रिसर्चर आप इसको याद रखिएगा. Whenever you are studying a book, remember that the attitude of the writer must be understood. नहीं तो कभी आपको कुछ पढ़ने को मिलेगा सेम विषय के बारे में और उसी विषय के बारे में दूसरा पढ़ने को मिलेगा by another writer. So this is hermeneutic. You are studying the book in general. You have not gone inside as yet. And after that, the heuristic research is, HEU, is that when you go inside. अब वो कितने चैप्टर्स लिखे, चैप्टर्स को कैसे उन्होंने डिलिनिएट किया, एक्सपैंड किया, और अंत में उन्होंने कंक्लूजन कैसे की. So a book is a book is a treasure. A book is a very important material. और आज के दिन में लड़के लाइब्रेरीज में बुक्स पढ़ते ही नहीं. They go by the notebooks still for doing research. हम हमेशा इसलिए कहते हैं किताब पढ़ो, any और ओरिजिनल किताब आप पढ़ लो. And all of you must remember कि if you are a serious student of research in social science, you must develop the habit of reading books, right? Second बात जो हम कहना चाह रहे हैं कि एक और रिसर्च होता है, प्योर रिसर्च हो, और एक दूसरा जो रिसर्च होता है वो रिसर्च है अप्लाइड रिसर्च. मतलब हमें मान लीजिए सरकार ने स्टडी करने के लिए एक प्रपोजल दिया, दैट्स अ रिसर्च. लेकिन हमारे तरीके अलग होंगे और हमको एक रिजल्ट सरकार को देना होगा कि हमारे यहाँ कोरोना प्रभावित लोग छोटे से कॉलोनी राजीव नगर में कितने हैं. That research also I'm doing. लेकिन उसमें साइंटिफिक प्रोसीडियर्स को हम ज्यादा फॉलो करेंगे, स्टैटिस्टिकल प्रोसीडियर्स को ज्यादा फॉलो करेंगे, कैसे कैसे सैंपलिंग लेंगे लोगों का वो हम देखने का प्रयास करेंगे, और तब हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे आफ्टर अ कंपैरेटिव स्टडी विथ अ नेबरिंग कॉलोनी. ये एक तरह का अप्लाइड रिसर्च है. आप आज के दिन में सोशल साइंस में बहुत ज्यादा अप्लाइड रिसर्च हो रहा है, खास तौर पे जो सब्जेक्ट मान लीजिए इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में इधर के दिन में लास्ट PGRC जो हमने अटेंड किया पटना यूनिवर्सिटी में,
most of them were doing applied research. For example, मनरेगा का impact in a block close to Patna, that is Fatua, and in a block which is away from Patna, away from the capital. दोनों जगहों पर मनरेगा का क्या impact पड़ता है? तो इसके लिए स्टूडेंट्स किताब तो पढ़ेंगे, मनरेगा क्या है वो पढ़ेंगे, बाकी अन्य जो हमारे स्टेट से वहां पर रिसर्च हुआ है उसको पढ़ेंगे और पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ वो क्या करेंगे, दे विल डेवलप अ क्वेश्चनर, एक क्वेश्चनर बनाएंगे. अब क्वेश्चनर के भी कई तरीके होते हैं, वो फिर डिटेलिंग हो जाएगा. जैसे आप एक रैंडम सैम्पलिंग का क्वेश्चनर ले लीजिए, उसमें जेंडर के इतने परसेंटेज होने चाहिए, मेल के इतने परसेंटेज होने चाहिए, बच्चों के इतने परसेंटेज होने चाहिए, ये सारा परसेंटेज आप देख लेंगे. उसके बाद आप सैम्पलिंग करेंगे, एंड in pure research, in applied research, it is always believed that 1% sampling और questionnaire का जो effort होता है वो नहीं चलता है. 2 लोग एक साथ करेंगे, क्योंकि किसका क्या व्यूज है वो जानना जरूरी है. और लास्ट में एक पैराग्राफ रहता है जिसमें आप अपने अपने व्यूज को दर्ज करते हैं. Then you sit on a computer, और वो सारे responses जो हैं वो responses को आप कंप्यूटर में डालें, कंप्यूटर आपको फीडबैक देगा, and then you can make a comparative study between मनरेगा somewhere and मनरेगा elsewhere. अभी इकोनॉमिक्स में जितने हमारे इकोनॉमिक डिजाइन्स हैं और जितने हमारे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं सरकार के, फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लड रिलीफ का प्रोग्राम चल रहा है, ये सारा उसमें आता है, एंड इट मेक्स, सम पीपल से दैट इट मेक्स मोर रेलेवेंट रिसर्च. उससे क्या होता है, खूब बढ़िया आउटकम आता है. Then you can tell the government that this is the outcome that I have received, and on that basis certain changes can be made. कितने डॉक्टर्स आ रहे हैं, कितने नर्सेज आ रहे हैं, all this can be done through applied research. If you go to science, applied research would be something else. जैसे applied research में अगर कोई chemist है, for example, my father was a professor in chemistry. I had no brains to understand chemistry, so I took history. So when my father went into the lab and he took up applied research, तो क्या करते थे? They would make soaps, they would make phenyl, they would make various kinds of objects in the library itself, apart from doing pure study or pure research. So this is applied. जैसे आप जानते होंगे कि केमिस्ट का जितना भी दुकान होता है उसमें एक केमिस्ट बैठता है. केमिकल दुकान जितने होते हैं, मेडिसिन दुकान जितने, उसमें आप देखे होंगे केमिस्ट बैठता है. Now the chemist needs to know कि उसका ingredient क्या क्या है उसके अंदर, how has it been developed. वो साइंस का मामला हुआ. लेकिन here also we do sociology में आजकल it's such a important subject now. You see, मान लो आपको सेंसस रिपोर्ट मिल जाएगा, आप सेंसस रिपोर्ट से क्या कीजिएगा? ऐसे ही सरकार करोड़ खर्च कर रही है सेंसस बनाने में? नहीं, सरकार इज गिविंग यू डेटास, और वो विभिन्न तरह के डेटास रहते हैं. आज तो जानते हैं आप कि देयर इज अ कंट्रोवर्शियल issue regarding caste census. But the government needs to know households कितने हैं, किस तरह के households हैं, यहाँ तक कि एक household में न्यूज़पेपर लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, रेडियो है या नहीं है,
साइकिल है या नहीं है, क्योंकि उसी से क्या होता है, यू गेट एन आइडिया दैट आपके देश में जो लोग हैं उनका स्टेटस क्या है, एंड हाउ डू वी नीड टू रिफॉर्म क्या चीज, आवर ओन पॉलिसीज एंड आवर ओन बजट. Therefore, sociology becomes today, of course, very important two subjects, economics and sociology. Even in history, you can't do without it. अब मान लीजिए आपको एक हिस्ट्री का उदाहरण दें. इन हिस्ट्री एक स्कूल है, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, आप याद रखिएगा हिस्ट्री के स्कूल के बारे में. वो स्कूल का नाम है एनाल्स स्कूल, ANNALES, एनाल्स स्कूल. ये एनाल्स स्कूल जो है वो पेरिस में डेवलप किया. उस समय डेवलप किया जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था और हिस्ट्री लगभग खत्म होने वाला था. Then some of the people like Braudel, BRAUDL, they came up with an annals paper और उसी पर स्कूल बना. उसको कहते हैं, द प्रोसेस जो लोग फॉलो करते हैं, बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, प्रोसेस में जो फॉलो करते हैं उसको कहते हैं लॉन्ग्यूड्यूरी प्रोसेस. LONGUEDUREE, लॉन्ग्यूड्यूरी. लॉन्ग्यूड्यूरी मतलब लंबे समय तक. ठीक है. तो जैसे मान लीजिए 1857 का क्रांति, सब लोग जानते हैं उसके बारे में, क्यों हुआ, खत्म हो गया, 4 साल रहा, नहीं रहा, उसी में हम लोग खत्म कर देते हैं. बट ये एनाल्स के जो लोग हैं इसको स्टडी करेंगे कि क्या 200 इयर्स से क्या प्रॉब्लम हो रहा था, that this revolt eventually had to occur in 1857. उसी तरह से ब्रॉडल ने कहा कि भाई मेडिटेरेनियन में सडनली जो एक कैपिटलिस्ट, नियो कैपिटलिस्ट क्लास का उदय होता है, क्यों हुआ, अचानक हुआ. So you know how long they studied and researched? 400 years. आप पूछिएगा तो वो तो 400 years जिंदा नहीं रहेंगे, वो तो 400 years से कॉपी किताब कहाँ से लाएंगे. लेकिन इसका सीधा जवाब था, they went to the existing libraries. और उस समय सबसे मजबूत लाइब्रेरी कौन था, तो वो मजबूत लाइब्रेरी था चर्च. तो the vicars, the church, the ordinary people, those who ran the taverns, मतलब वो pubs जो रन करते थे, सबके पास वो जाते थे. And these are the ones जो कि क्वेश्चनर यूज करने लगे, और उस क्वेश्चनर में दे रिकॉर्डेड व्हाटएवर दे रिमेम्बर्ड. ये नहीं कि आर्काइव्स में बैठ के साइंटिफिक है कि नहीं साइंटिफिक है. How do you know what the people says are not scientific? And only what is kept in the books in the archives would be scientific material? No. So they said, let's change it. और इस एफर्ट के बाद, एनाल्स के इस एफर्ट के बाद, history virtually ate up a lot of subjects. For example, sociology. They said everything is in history. हम तो यहाँ वर्ण system, caste system, everything I can study, and I can study over a period of 2000 years. तो research methodology में depend करता है कि आप क्या subject चुनते हैं. अगर आप सोशियोलॉजी लिए हुए हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स लिए हुए हैं, और अगर आप जियोग्राफी भी लिए हुए हैं, then what you can do is आप अप्लाइड रिसर्च में भी जा सकते हैं. एक थ्योरी हो सकता है कि अब लाइब्रेरी में बैठ के सोशियोलॉजी की किसी थ्योरी को आप एनालाइज कर दिया, खत्म हो गया, आपको मिल जाएगा PhD डिग्री. बट इफ यू आर डूइंग समथिंग, make it relevant. और relevant करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने कहा एनाल्स स्कूल के बारे में, तो एनाल्स स्कूल सेड कि जब तक यूनिवर्सिटी रहेगा तब तक रिसर्च नहीं होगा. डू यू नो दैट? आज हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी should be a research center,
And of the 4 universities, the first one should be research. They said you're bogged down with exams and corrections and all kinds of things. So we need to have a separate institute. और तब ECOLS, ANALS, ये institutes बने. And they're still there in Paris. Daisy ma'am, we can't hear you. Yeah, so I was just telling you, you have to go to these social science institutes. आप देखेंगे वहाँ पर subjects like history is not researched. Why? Because it is a research that is applied research, and this is very important. And I would suggest to all of you, my friends, researchers, कि आप कुछ ऐसा सब्जेक्ट चुने जहां आप डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट कर सकें, एक स्लम ले लें, कॉलोनी ले लें, और फिर उसके बेसिस पर आप डेवलप करें. इसी रिसर्च का अगर आप स्टडी करें तो 3-4 तरह का रिसर्च होता है. एक जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होते हैं. मान लीजिए हमने किया या रत्ना ने किया, वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी. और सोशल साइंसेस में, हिस्ट्री में खास तौर पर डिस्क्रिप्टिव स्टडीज चलता है. तो वी डू डिस्क्रिप्टिव स्टडीज आल्सो इन social science. Then another thing that we do is correlational. ठीक है? मान लो पहले, आज से 30 years पहले, somebody had written something about the Aryans. You know, Aryans इतना important question है आज के दिन में. Historically नहीं, politically है कि कौन आर्यन है और कौन नहीं आर्यन. तो उसको हम फिर से रिव्यू कर सकते हैं. तो इसको को-रिलेशनल स्टडी कहते हैं. तीसरा हो जाता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. आप किसी टॉपिक को चूज करके, फॉर एग्जाम्पल, इफ द बुद्धा सेड समथिंग लाइक नॉट अहिंसा, but if he says something, don't accumulate property. Why did he say don't accumulate property? What is Buddha's links with property? तो ये एक तरह का एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो जाता है. और एक होता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. मतलब आप कोई सब्जेक्ट को चूज कीजिए, हिस्ट्री में ही कोई सब्जेक्ट को चूज कीजिए, मान लीजिए, और हमको बहुत दिन से ये करवाने का मन है कि एक जिसको एंशिएंट पीरियड कहते हैं, do we still need to continue to define that period as an ancient period? क्यों हम बोलेंगे ancient? Just because अंग्रेजों ने कह दिया ancient, तो हमने भी कह दिया ancient. तो आज क्या पीरियडाइजेशन की आवश्यकता है हिस्टोरिकल रिसर्च में या हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग? तो हम क्या करेंगे? एक्सप्लेनेटरी तरीके से निकलेंगे, अन्य देशों की भी स्टडीज करेंगे, और फिर अपने एक कंक्लूजन पर हम पहुंचेंगे. तो दिस इज वन एलिमेंट दैट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू, प्योर एंड अप्लाइड. और उसमें कुछ जो तरीके होते हैं, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी, एंड सो ऑन सो फॉर्थ. The second thing that I want to discuss with you is a research, no matter how non-scientific you are, has to be structured. आपको रिसर्च को स्ट्रक्चर करना होगा. जैसे एक रिसर्च में आप जानते हैं कि जब आप कोई रिसर्च प्रपोजल आप डालते हो, तो उसमें हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना नॉर्म्स होता है. But there are certain norms which are common also. For example, आप objective state कीजिए. Why do you want to do a research on a certain material?
आपको हम बताएं, अभी हमारे अंडर में एक स्टूडेंट अप्लाई किया था, which are rejected. उसका रिसर्च का टॉपिक क्या था? उसका रिसर्च का टॉपिक था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन. अब हमारे रिसर्चर इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो अभी तक रोमिला थापर को बीट कर दें या दीक्षितार को बीट कर दें या नया नया आर्कियोलॉजिकल खोज, ये संभव नहीं है. सो व्हाई इज ही डूइंग इट? लेट हिम ट्राई in any other field, but in areas जहां पर बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुका है. The second thing that you must do in a research proposal is, ये हम अपने यूनिवर्सिटी से ही उठा के आपको बता रहे हैं, डिजाइन. How do you plan to design it? आज के दिन में इसके लिए शब्द यूज किया जाता है मेथोडोलॉजी. आपका टोटल मेथोडोलॉजी क्या रहेगा, कैसे कैसे अब बढ़ेगा रिसर्च. थर्ड है कि आप क्वेश्चनर्स यूज करें या नहीं करें. और भी बहुत है. लास्ट में है कि आपके कंक्लूजन से कोई नई चीज हमें पता चल पाएगा. And I look forward to something new in your research. And let me tell you, dear students, कोई new कहीं से same thing that they go on repeating. Paradigm of research. There are two main paradigms. Research का जो paradigms होता है उसमें दो तरीके होते हैं. सोशल साइंसेस में दो होते, और उस पैराडाइम में आप किस चीज को फॉलो कर रहे हैं. आपको हम एग्जाम्पल देते हैं. मान लीजिए हिस्ट्री में वैदिक एज करके हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे रत्ना, आई एम श्योर. तो वैदिक एज करके चैप्टर हम लोग सब पढ़ते हैं. Now Vedic age has been written by R.C. Majumdar. लंबे वॉल्यूम्स हैं, टिल इंडिपेंडेंस उन्होंने लिखा है, एंड ब्रिलियंट वर्क अदरवाइज. उसी वैदिक एज को उन्हीं सोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए आर.एस. शर्मा ने कंप्लीटली उसको कट ऑफ किया. बोले ये है ही नहीं, ये कहां से लाते हैं. तो हम पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं. I'll have to explain that. कि हाँ बहुत स्टडीज हुए हैं, लेकिन अभी के जो स्टडीज हुए हैं उसमें पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है. एक प्रॉब्लम जो अक्सर हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, आई वोंट मेंशन ज्योग्राफी, बट पॉलिटिकल साइंस में फेस किया जाता है, और इसके चलते हम लोग को डेरोगेटरी थोड़ा सा माना जाता था पहले, क्या दीज आर आर्ट सब्जेक्ट्स. आपको याद होगा पहले हम लोग इसको आर्ट्सी कहते थे. टुडे वी से सोशल साइंस. आर ऑल दीज सब्जेक्ट्स इक्विप्ड टू बी डिस्क्राइब्ड एज साइंस? हियर लाइज अ बिग प्रॉब्लम. आप क्यों सोशल साइंस कहते हैं? आप आर्ट्स कहिए, सोशल सब्जेक्ट्स कहिए. The reason is that when the modernization phase began in Europe, modernity and science had a very deep link. And what is essentially science? Essentially, science is to question why, and then to look for an answer. आप सब कहानी जानते हैं. न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, सेब गिरा. हजारों लोगों ने इसके पहले देखा है कि सेब गिर रहा है, बट न्यूटन क्वेश्चन, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि वो सेब नीचे गिरा, बीच में क्यों नहीं रहा, ऊपर क्यों नहीं किया.
आज के दिन में हम लोग को फनी लगेगा ये सब क्वेश्चंस, बिकॉज टेकन फॉर ग्रांटेड है। बट आइजैक न्यूटन ने इसके बेसिस पर ही डिस्कवर्ड one of the famous laws in physics, the law of gravity. और अर्थ का जो पुल है, जो फोर्स है, उसके चलते ये होता है। आप देखते होंगे अभी स्पेस शटल्स में भी आदमी जो है वो तैरता रहता है, because there's no gravity inside the space shuttle unless they put on something heavy. तो ये नेचुरल साइंस में तो ये सब है। आइजैक न्यूटन का थ्योरीज है, आइजनहावर का थ्योरीज है, ये सारा थ्योरी उसको प्रिसाइसनेस देता है। दैट मीन्स शॉर्ट में फिर अगर साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट करते हुए रिजल्ट हमें पटना साइंस कॉलेज में मिला, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट बट आई एम सेइंग हम, अगर हमको कोई रिजल्ट ऐसा मिलता है तो इन दैट केस वही रिजल्ट सिमिलर कंडीशंस में न्यूयॉर्क के लाइब्रेरी में भी मिलना चाहिए। दिस इज साइंस। साइंस इज एब्सोल्युटली, जिसको कहते हैं you can project it, you can stand by it. So a scientist says कि आज में तो ये सब नहीं होता है, I can tell you the result, और आप जाके कहीं चेक कर लीजिए, लेकिन वो रिजल्ट वही रहेगा। बट एक प्रॉब्लम आया साइंस में when Eisenhower said there is a possibility of a chance. सब कोई EH कार पढ़िएगा जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चांस मतलब क्या? थोड़ा सा कुछ डिफरेंस हो। यू नो यू हैव गिनी पिग्स, और पास्चर ने वो कंडीशन रिफ्लेक्स का थ्योरी दिया था। ऑल द गिनी पिग्स वुड रन एंड ईट। वन गिनी पिग डिड नॉट रन एंड ईट। सो व्हाट हैपेंड टू दैट गिनी? क्यों नहीं खाया वो? चांस का फैक्टर है, तबीयत खराब थी उसकी, उसको बुखार हो गया था, हो सकता है। So every time science cannot be predictable. अभी भी अगर जो कहता है science is predictable is wrong. I'll tell you another example of Russia. You see, Russian Revolution में two leaders emerged. सब जानते होंगे जो पढ़े होंगे। Lenin emerged and Trotsky emerged. If Lenin was brilliant, Trotsky was no less. और उन लोग का फाइनल डिबेट होने वाला था in a place called Petrograd, which is close to Siberia. एक दिन पहले Trotsky goes to hunt, और वो शिकार करने चला गया और लौटा and he fell sick. नेक्स्ट डे का जो डिबेट होने वाला था, Lenin won hands down, और ट्रॉट्स्की का जो पार्टी था, the Bolsheviks, they got defeated by the Bolsheviks. Now what is this? If Trotsky had not gone, something else might have happened. ये चांस का थ्योरी आज के दिन में साइंस में भी एक्सेप्ट किए हुए हैं। और सोशल साइंस में हम क्या करते हैं? सोशल साइंस में तो हमको एक्सेप्ट करना ही है। एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आपको हम देते हैं, Why did the revolution first occur in France? फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले बाकी किसी यूरोपियन देश में जो उससे भी गरीब था, फॉर एग्जाम्पल पोलैंड, why didn't the revolution
start in Poland. A, because बहुत factors होते हैं, and B, which is very, very important, human psyche. लोग कहता है इंडिया में क्यों नहीं आया कैपिटलिज्म? 18th century we were poised for capitalism. लेकिन एक साइकी है, how human beings act. Human being पास्चर का guinea pig नहीं है. Human being is a human being. वो act करेगा accordingly. So therefore remember, कि जहां तक हो सकता है आप अपने रिसर्च में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड कंक्लूजन को तवज्जो दीजिएगा. जहां उसमें डिविएशंस आएगा आप उन डिविएशंस को मेंशन कीजिएगा. लॉट ऑफ थिंग्स. लॉट पीपल से बुद्धा एड्रेस्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल. आपके मन में क्वेश्चन नहीं आया? कोई क्वेश्चन नहीं है आपके मन में? बिकॉज यू आर नॉट साइंटिफिक, यू डोंट आस्क व्हाई. 1000 लोगों को बुद्धा एड्रेस नहीं कर सकता है क्योंकि लाउड स्पीकर उस समय नहीं हुआ करता. You see, there are certain things जिसको हम लोग यूं ही लिख देते. But today the academic world demands that history, philosophy, sociology, ये सभी के सभी लोग साइंस का इस्तेमाल करें जहां तक वो साइंस का इस्तेमाल. रैशनली पूछिए. बुद्धा वाज अ साइंटिस्ट. When Buddha saw sorrow, he questioned. और प्रकृति समुत्पाद ले आए. The state of 12 origins that lead to sadness. इसीलिए अक्सर historians कहते हैं, who says Buddha is a god? Brilliant person, a scientist living in the 6th century BC. और हम लोग उनको उनका पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर ये सारा चीज हमने चेंज कर दिया. इन सोशल साइंस 2 or 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आज के दिन, आज जब हम रिसर्चर्स देखते हैं और बाहर के अच्छी यूनिवर्सिटी से रिसर्च आते हैं, इट्स नॉट द काइंड ऑफ रिसर्च दैट वी आर प्रोड्यूसिंग. रिसर्च जो है वो मैनेजमेंट से एफिलिएटेड हो गया. You know, management studies are coming up very, very fast. Management, even those who are in the bureaucracy are given lectures in management. Those who are working in NGOs, मान लीजिए आप एक रिसर्च कर रहा है, कोई सोशियोलॉजी में जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप NGOs पर रिसर्च कर रहे हैं, and a very, very good article that would be NGOs. तो अगर आप NGOs पर रिसर्च कर रहे हैं, in that case some amount of managerial skill would be needed. मैनेजरियल स्किल में क्या होता है? बहुत सिंपली आपको हम समझा देते हैं. It takes 2 months or 3 months or 6 months to study. Very simple understanding is you chose a subject NGO. उसके बाद आप एक मैनेजमेंट ट्री बनाते हैं. Literally a tree is made in the copybooks or on the board. और उसके जो शाखाएं ब्रांचेस हैं उस पे आप लिखते हैं कि आप क्या क्या स्टडी करने वाले हैं. ये तो आपकी स्टडी हो गई. लेकिन उसके बाद जैसे वृक्ष के लिए जड़ बहुत इंपॉर्टेंट है. Again, there's some problem with the voice. प्रॉब्लम सैनिटेशन है.
प्रॉब्लम ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, प्रॉब्लम सो इसको आप क्लियर कीजिए. सी हाउ क्लैरिटी कम्स. और तब when the tree grows, you begin to suggest कि इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आप क्रिएट करते हैं. And then comes the last 2 or 3 branches. How do we solve the problem? इसका solving हम कैसे करेंगे? एक मेथड उन लोग का होता है जिसको कहते हैं SWOT method. So what they do actually is, पहला प्रॉब्लम क्या होगा अगर आप काम करना चाहते हो सोशियोलॉजिकली, जो सोशियोलॉजी में है, वाटर सिस्टम्स नहीं, यू नीड अ बजट. यू राइट मनी. Then you again create a branch and you write trained professionals. Then you write another branch and write community participation. Very important. और ऐसे ऐसे सोशल साइंस में आप धीरे धीरे आप ट्री और रूट्स न बनाएं, लेकिन इसी प्रकार से आपको रिसर्च का जो प्रपोजल है उसको आपको बिल्डअप करना होगा. इसलिए आपको प्रॉब्लम्स लिखना होगा. क्या प्रॉब्लम्स है लिखना होगा, कैसे आप उसको मीट की. अगर बजट इज द मेन थिंग, बोल्ड अक्षर में लिखिए बजट. एंड देन who do you approach to get the budget? ठीक है? You can approach a foreign agency or you can approach the government itself to do it. Then if we look at research progressing otherwise, what are the things that are required? Ratna, I'm not talking about history. No. No, I'm just giving you basic. Yeah, people are there from all subjects also. No. Because if you want history, then No. it'll only be history, yeah. And then you can organize a separate one for only history. Yeah, Then, we have a separate one for history later. Yeah, that's okay. Just give me some time to recover. Yeah. But you came today, that itself is like. So history is, sorry, in general research what happens is आपकी तैयारी जो है, what people forget normally. Now let me warn you on this. The first is none of my students do. None. एक का भी हम नाम ले सकते थे तो I would have been very proud. You must have cards. You develop cards. Or cards मतलब you must have small cards, big cards. जिस किसी बुक को आप स्टडी कर रहे हो, उसका जो मटेरियल होगा, that which is relevant, कार्ड में मार्क करो. Write the page and also write the card. Because what happens is, when you finish your research and then prepare the footnotes, आपका double work हो जाता है. You forget from where you've taken. तो footnotes के लिए you must keep cards. First chapter के लिए, second chapter के लिए, third chapter के लिए. It becomes so much more easier. And then you put in the numbers. This is one. Remember this. All of you are doing research now. And the second thing is, cards में आप अगर footnotes के लिए तैयारी कर रहे हैं, please write the book name also. The book name, if it is mentioned, आपको फिर से उलटना नहीं पड़ेगा उन सारे किताबों को, या देखने के लिए कि extracted a certain material. Then, when you prepare a bibliography, जरूरी है bibliography. When you prepare a big bibliography,
you must be very, very careful that, yeah. You must be very careful कि किस तरह से bibliography को लिखे. लोग कैसे भी लिख देते हैं bibliography. For example, I would love to have a desk and a bench. और म्यूट कर दीजिए मैम. You mute it. अरे आप अनम्यूट कर लीजिए. You can unmute yourself because you are a co-host. अनम्यूट कर ले मैडम. Hello. We can, So when you do a bibliography, एक pattern follow करो. Any pattern is followed, you'll virtually be rejected. कभी किसी ने नाम आगे दे दिया, 5 नाम ऐसा दिया जिसमें नाम आगे है, पब्लिशिंग हाउस बाद में है, फिर 5 पब्लिशिंग हाउस आगे है, फिर नाम बाद में है. नो, किसी जो सिस्टम को आप फॉलो करते हो, आज के दिन में देख लेना किताब में, there is a particular pattern. So first, what is to be done, when the name is to come, and the date of publication. इसलिए मेहनत है, research. You are going to become a PhD scholar. इसमें बड़ा मेहनत लगता है. And these are the areas where you need actually to have proper or give proper attention. रिसर्च में 2 टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे. There is no time to listen. जैसे JNU में अगर आप रिसर्च के लिए जाइए तो 6 घंटे रिसर्च होते हैं, वाइवा होता है, और यहाँ 15 मिनट मुश्किल से होगा या आधा घंटा होगा. अब किसी को अच्छा लगा रत्ना का तो रत्ना बोलते चली गई आधा घंटा, फिर उनको बोला गया आप शांत रहिए, बहुत हो गया. So that's how. Therefore, introduction and conclusion must be very, very important. आप जो अपने लिखे हो, that you can defend. You can always say, no madam, I thought it is this, 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 this. नक्सल आंदोलन, ये तो स्टडी का पॉइंट है, सोशियोलॉजी में भी और हिस्ट्री में भी, और to some extent economics में भी. A lot of students have picked up Naxalite movement in Bihar, and then students movement in Bihar, and JP movement in Bihar, and so on and so forth. Very live topics. But आप जब conclusion देंगे that these Naxalites have created a havoc and so on, so on, so on, so forth, immediately the question will be asked, have you been to any Naxalite area? Then you say no. How do you know all about this? Oh, because I read Prakash Lewis, I read, so I know. But you didn't go. Have you talked to a Naxalite? No. Tharwat पर research हुआ, Theras. Can you imagine? सारा का सारा थेरा का रिसर्च जो है वो पटना में ड्राइंग रूम के में बैठ के लिखा गया. कतई मत समझना कि जो बाहर से लोग आते हैं as your expert, they are not experts, they are fools. So they said, Tharwat कहाँ है? That at least they can answer, they'll give. कौन कौन गांव आप विजिट किए? स्टॉप, वहां से फुल स्टॉप शुरू हुआ.
उनके सोशल कस्टम्स क्या हैं, फुल स्टॉप। मॉडर्नाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन आपको क्या देते हैं, ये टॉपिक्स आर वेरी वेरी गुड। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करो, गवर्नमेंट का हेल्प ले लो, you will get wonderful material to prepare for your PhD. Ratna, I think I'll end here, Ratna. Okay. And only thing, last point is, take research seriously. Iska book, if you write book publication, you can publish a book also. So be very careful about your research, very careful about the sources that you're picking up. Supposing you're doing something about Buddhism, आपको पाली नहीं आता है, आप किसी से translate करके पढ़वा सकते हैं कुछ, relevant portions, right? Similarly with Jainism, in history I'm saying, etc. और जो world open up कर रहा है, वो world तो economics और sociology का है, इसलिए इसमें आप research करने का प्रयास कीजिए. Thank you so much. Because my mouth is getting dry. So. And आप लोगों को बता दूं कि काफी तबीयत खराब है, तभी भी उन्होंने 1 घंटे का लेक्चर, कोरोना नहीं है लेकिन well, and I'm